Good morning, dear students. Matrix, we are continuing. Last lecture, all of you have seen introduction of matrix, types of matrices we have discussed, then addition, subtraction, multiplication, and 2 cross 2 order inverse of 2 cross 2 matrix. For that, I have given you shortcut. Now we will start with inverse of a matrix for 3 cross 3 matrix. Fine? And then some properties of adjoint matrix and problems based on matrix. Correct there? So let's start with inverse of a matrix of 3 cross 3 order. Let's say a matrix A 1 0 1 2 1 1 0 2 3. This is what one matrix. Clear? We have to find the inverse of this matrix. See, I am using the shortcut. That shortcut you don't use in board exam, correct? This shortcut is used for only NDA exam. Now the question comes whether NDA, this 3 cross 3 inverse, it comes. Yes, it used to come. Last 2018-19, we have seen that adjoint or inverse, both it came. So we must to know shortcut for this 3 cross 3 order matrix, inverse of this. Fine. See what we do for to get the inverse in shortcut. See, in this matrix the center element is 1, so you write 1 here first, correct? 1 and this 2 and then top 0 and then again 1. Fine. What I did, this center element you write first, then you write the down one 2 and then top 0 and then again 1. Fine. Then you go to the right side, write 1, similarly down 3, then 1 top and then again 1. Fine. Now you come to left, 2 down 0 and this is 1 and again 2. Fine. And finally what you have written in the first row, same thing you write here also, 0 1, or you write 1 2 0 1, or what you have written first row you just copy it. Fine. So these are 4 rows now. Now we have to get the A inverse. All of you know the formula of A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A. Fine. So now we will get the adjoint of this matrix and then 1 by determinant A also we will calculate. So now this we have written. Now you start like pairing this into this and this is like in determinant how you solve. 1 into 3 minus 2, that is 1. Then you pair this, 2 into 1 0 2. Now pair this, 0 into 1 0 and this minus 1. Fine. Same way now you come to this, 1 into 0 3 2 is 6 minus 6. In between it is minus. Then you pair it this, 3 into 1 3 minus 0 3. And then pair it this, 1 2 is 2 2 minus 1 1. Now you pair it these two, 2 2 4 minus 0 4. Now this 0 into 0 2 into 1 minus 2. Fine. And finally this into this 1 minus 0 1. Correct. So this way we collected the elements of this. Now now we have to find the determinant A. Determinant A also you can go by in this inverse, the first row and multiply this column. Correct? First row to this column will give you the determinant value. So what is going to be 1 0 and 4 1 1 4. So this is going to be 5. So the determinant value is 5, which is not equal to 0 also. So we know that to get an inverse matrix should be non-singular. So 1 by 5. So this is the inverse of this matrix, this one. How you can check this answer is correct? If you multiply this into this, you will get I, unit matrix. Fine. So this is what a 3 cross 3 shortcut we have used. I believe we will do a couple of sums. You will see the same shortcut I am going to use. So 2 cross 2 you have seen shortcut, and this is also 3 cross 3 shortcut. In board also you can check by this shortcut whether your answer while doing those cofactor concept method, so adjoint A then transpose of those cofactor matrix
and multiply with determinant, the answer will be same. So this shortcut you use in to get adjoint A only. If you want to get adjoint A, then don't calculate this determinant. You get this one, that is adjoint A. And if A inverse is there, so this determinant value, how will you calculate? This row to this column will give you the determinant value. Correct? So this shortcut for 3 cross 3 matrix. Fine here. So now we will go to some properties of adjoint matrix and their results. Fine. You have seen in the inverse, I have already told you that reversal property AB inverse equals to B inverse A inverse. Now we will have some properties of adjoint matrix. That is important to remember. Problems based on this, it used to come. Look at this. So this is shortcut for 3 cross. How we did? Can you elaborate once again? In problems we will do once again. Now see what I did. First you write the center element 1, then you write 2, then you write 0, and then you write again 1. Correct? Now you go to right side. 1, 3, down. Top 1, and then again 1, middle 1. Come to this side left. 2, 0, 1, and again 2. Fine. And finally this row you paste it here. Same, or 1, 2, 0, 1. The same thing. Now you make it pair. Fine. This to this, then this to this, then this to this. You will get the first row. Then for second row you will pair it these two and these two. And like in determinant how we multiplied, same thing you have to go 3 into 1 minus 0 into 1. Same way again here, 1 into 2 minus 1 into 1. Finally for third row, this you pair it. This you make it determinant. 2 into 2, 4 minus 0. Then again for this, for second, and for third finally this into this 0. Fine. And to get the determinant value, the first row to first column. That will give you the value of determinant. So this is what a shortcut of your 3 cross 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट. ठीक है, हम प्रॉब्लम्स पे भी कर लेंगे इसको. चलिए, मैं कह रहा था एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होते हैं, उसको याद रखना कंपलसरी है. लुक एट दिस. वी हैव सम प्रॉपर्टीज इन एडजॉइंट. I believe another day I have written also. If I have not written, then again we will write. Adjoint of A, determinant of adjoint A is determinant A to the power n minus 1. N is order of that matrix. N is order of matrix. Correct? This is one first result. Second result is, if you go adjoint of adjoint A, we will have determinant A to the power n minus 1 whole square. See, again I added one adjoint, so it become n minus 1 whole square. Suppose if you go, अगर आप इसमें 3 लगा देते हैं, adjoint, adjoint A और adjoint A ऐसा, so there ये हो जाएगा determinant A to the power n minus 1 पे whole cube and so on it goes. ठीक है? So these three property, in fact ये याद रहेगा तो ये तीनों आप remember रख सकते हैं. तो ये adjoint की इस property को determinant की, it's very important, remember it. Then we have adjoint of adjoint A. This is nothing but determinant A to the power n minus 2 into A. This A is a matrix. N is order. N is order of matrix. So adjoint of adjoint A is determinant A to the power n minus 2 into that matrix A. That is the adjoint of adjoint A. Find here. Another property we have, adjoint of A inverse is equals to adjoint of A to the power minus 1 or inverse, adjoint of A inverse. ठीक है? If you have adjoint of A transpose, this also you can write, आप इसको adjoint of पूरे पे ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं. ठीक है? सो ये एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम में
यूज़ करेंगे हम. ये कंपल्सरी टू नो दीज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. फाइन. हमने उधर डिटर्मिनेंट में ऐसा मेंशन कर दिया था, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर -1 विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए. तो ये भी ध्यान में रखना है. सिमिलर मैट्रिक्स, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, ये सारे टाइप्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सिमिलर मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है. नॉन सिमिलर में डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी 0 नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स. सो टू गेट अ इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए हमें नॉन सिमिलर मैट्रिक्स कंपल्सरी करना होता है. अगर नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने एडजॉइंट के डिस्कस किए, इनवर्स के ये शॉर्टकट. नाउ एंड द प्रीवियस लेक्चर में आई हैव डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और 2x2 का इनवर्स शॉर्टकट डिस्कस किया था. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन दीज. करेक्ट. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. ये रिजल्ट में ऐसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मैट्रिक्स के अंदर मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो लूँगा और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट टाइप के होते हैं. उसमें आपको कमेंट करना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो वैसे कुछ 10 to 15 प्रॉब्लम्स में मैं एज ए नोट प्रोवाइड कर दूँगा. इस प्रॉब्लम के अलावा जो आप घर पे उसको गो थ्रू करिए, वो स्टेटमेंट याद रखिए, सो दैट आप एनडीए के क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट भी दिमाग में रहा तो उससे आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं. तो ऐसे 10 to 15 स्टेटमेंट्स आई विल प्रोवाइड यू एज ए नोट्स. फाइन. एंड इन दैट यू विल गेट दीज फॉर्मूला ऑल्सो. ठीक है. आइए विल स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट क्वेश्चन, a equals to 1 2 3 4 if its inverse matrix is Bij, then B22 -2 1 3/2 -1/2. Correct. This is matrix. If its inverse matrix is Bij, इसकी इनवर्स ये है तो हमें B22 चाहिए. ठीक है. तो इस पहले तो मैं इसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लें. शॉर्टकट यूज करेंगे. 2x2 ऑर्डर का है तो इसके मैट्रिक्स को हम Bij कर दें. Bij. सो शॉर्टकट में क्या था, दिस इंटू दिस 1 अपॉन AD माइनस BC 4 - 6 -2. ठीक है. ये शॉर्टकट याद होगा आपको. 1 अपॉन AD माइनस BC. D को यहाँ लेते थे, B को माइनस, C को माइनस कर देते थे. AD को एक्सचेंज और ये दोनों में माइनस लगाएंगे. दिस वन इज शॉर्टकट फॉर 2x2. सो हियर 4 1 एंड ये -2 -3. ठीक है. अब -2 को अंदर ले लें क्योंकि हमें एलिमेंट बताना है B22. सो दिस इज -2, this is +1, this is 3/2 and this is -1/2. फाइन. अभी हमें इन्वर्स निकल गया हमारा. ये Bij इसका इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का. हमें B22 चाहिए. 2 2 सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट. तो ये क्या है हमारे पास -1/2. फाइन. सो दिस इज द आंसर. सो विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट, करेक्ट, इमीडिएटली वी फाउंड द इन्वर्स. इन्वर्स मिल गया अपने को. देन वी मल्टीप्लाइड और ये B22 या B11 कुछ भी मिलेगा. जब इन्वर्स रहेगा तो हम वी आर एबल टू टेल द एलिमेंट्स. तो B22 क्या आ गया, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट विच इज -1/2. फाइन. तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है एनडीए में आते हैं तो आपको ये शॉर्टकट अपने को हेल्प करेगा. इसका Bij इसका इन्वर्स था तो हमने इन्वर्स निकाल लिया. ठीक है. आते डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम में. इफ A equals to 1 2 1 1 and B equals to 0 -1 1 2, then
बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऑप्शंस में हमारे पास कुछ दिए हुए हैं मैट्रिक्स, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो हमें चाहिए क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। सो बी इनवर्स ए इनवर्स, यू रिमेंबर ये रिवर्सल प्रॉपर्टी होता है, ए बी टू द पावर -1। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स को आप ए बी इनवर्स लिखते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑन इनवर्स। तो अब मैंने क्या करना है, ए और बी को इंटू करके उसका इनवर्स निकाल लेंगे, हमें सेपरेटली इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। सो नाउ फर्स्ट विल कैलकुलेट ए बी मल्टीप्लाई कर लें आप, रो टू कॉलम 0 2 करेक्ट, then 1 to this -1 plus 4 3, and row to 0 this is 1, and 1 1 -1 plus 2 1, this came AB। अब इसका इन्वर्स चाहिए, शॉर्टकट यूज कर लेंगे। सो 2 - 3 which is -1, 1 upon -1, 1 upon डिटर्मिनेंट है 2 - 3। नाउ 2 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 इधर, ये -3 और ये -1, माइनस से इंटू कर लें आप, so this is -1 3 1 -2, this matrix came। So which one is correct option? So this one is the correct option। ठीक है, so B inverse A inverse, it came AB inverse। now what we did, AB को मल्टीप्लाई कर दिया, AB मल्टीप्लाई होके ये आ गई, उसका इनवर्स फिर से मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया। शॉर्टकट फिर से दिमाग में रखना है, AD माइनस BC, और ये D A और ये -B -C। कब, जब मैट्रिक्स हमारा ABCD है 2 क्रॉस 2 का, ये हमारा शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट याद रखना है अपने को। ठीक है, तो ये इन्वर्स के ये 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के जो हैं, ये कंपलसरी आप शॉर्टकट यूज करें। ठीक है, ये आइए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। शॉर्टकट यूज कीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिमाग में रखिए और केयरफुली इंटू करना है। इट इज़ अ सिंपल टॉपिक, बट थोड़ी सी हड़बड़ी में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल वाइल मल्टीप्लाइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन है ये, डायगोनल या नल। ठीक है, द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह का होगा, किस तरह की मैट्रिक्स, सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक या डायगोनल। एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से एक हम डायगोनल मैट्रिक्स तैयार करते हैं। ठीक है, इनका इन्वर्स भी आप जब निकालेंगे तो आप शॉर्टकट याद रखिए, इसके डायगोनल एलिमेंट को इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, यानी इसका इन्वर्स लिख लीजिए इस नंबर का। तो ये आ जाएगा 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/3। ठीक है, सो ये वापस कैसा मैट्रिक्स बना, डायगोनल मैट्रिक्स ही बना। ठीक है, ये मैट्रिक्स किस तरह की है, फिर से डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, ये इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। कि इनवर्स ऑफ अ डायगोनल क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसको कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, A = 0, राइट, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। तो इसका A इनवर्स हमने लिखना होता है ओनली D1 इनवर्स, D2 इनवर्स, D3 इनवर्स, ऐसे भी लिख देते हैं। क्लियर, इनको फ्लिप कर देना, ये डायगोनल एलिमेंट को आप 1/2 1/2 1/3, दिस बिकम अ इनवर्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स अगेन, फाइन। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो केयरफुल रहना है, कभी कभी मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स में दी होती है और उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है, तो आपने सीधा उसके डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। 2 2 दी हुई है तो 1/2 इस तरह से आप इन्वर्स कर देंगे उसको ओनली, नो नीड टू यूज एनी शॉर्टकट। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक सिचुएशन देखते हैं। इफ A and B are two non-singular matrix such that AB equals to A, then which one is correct? Is correct option. पहला है B is a identity matrix. Second is B equals to A inverse. Third is B equals to A square. And fourth is mod B, determinant B is 0. Fine? इस तरह से ये दी हुई है। ठीक है, तो A and B are two non-singular matrix है, such that AB equals to A दी हुई है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए दी हुई है, तो अपने को पता करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, या बी इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा, या बी ए स्क्वायर होगा, या डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सो अगर नॉन सिंगुलर लिखा है तो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स विल एग्जिस्ट, करेक्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में अगर नॉन सिंगुलर हो तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं, तो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब ये जो हमारा ए बी था, ए बी इक्वल्स टू ए, इसमें हमने ए इनवर्स लगा लिया बोथ साइड। ठीक है, ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इसको प्री मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन इनवर्स में होता है, तो मैंने इसको किया। अब A इनवर्स A, ऑल ऑफ यू नो विच इज I। ठीक है, A इनवर्स A, इसको क्लब किया, पेयर किया, और A इनवर्स A दैट इज ऑल्सो I। A इनवर्स और A इनवर्स ऑफ A बोथ इज I, रिमेंबर। ठीक है, A इनवर्स A इज I। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये I इंटू B इक्वल्स टू I, सो B इक्वल्स टू I। ठीक है, I B इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को इंटू करेंगे तो मैट्रिक्स A विल कम, राइट। सो B इक्वल्स टू I, सो क्या बन गया, B इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो इस तरह के थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम है जहां पे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी इनवर्स होगा। अब ए बी इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, इसमें मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन किया दोनों साइड, तो ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स ए जो आई होता है, ए इनवर्स ए विच इज ऑल्सो आई, आई बी इक्वल्स टू आई, सो बी इक्वल्स टू आई, सो बी इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये इनवर्स के बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रख के आप इस तरह के प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, नाउ विल गो टू सम मोर सिचुएशन। लुक एट दिस। I believe visible है, दिख रहा है सभी को। Look at this. If the matrix A is such that 1301 A equals to 101 minus 1, then A मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, सो लुक एट दिस, हमें A मैट्रिक्स चाहिए। सो दिस मैट्रिक्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को 1301 को आई टेक लेट्स से बी कर दिया। ठीक है, सो अभी क्या दिखाइए फिर, बी ए या ए बी कर लीजिए, बी ए
इज इक्वल्स टू दिस 1 1 0 माइनस 1, करेक्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ए चाहिए मुझे, तो मुझे इस बी मैट्रिक्स के बी इनवर्स से अगर इंटू करूँ तो ये ए मिलेगा, करेक्ट। तो मैं इसका क्या करूँ, इसको बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूँ अगर, बी इनवर्स, ठीक है, बी ए इक्वल्स टू बी इनवर्स ऑफ दिस 1 1 0 माइनस 1। तो ये क्या मिलेगा अपने को, ये दिस इज आई इंटू ए, और ये बी इनवर्स इंटू 1 1 0 माइनस 1, ठीक है। अब हम इस बी इनवर्स को कैलकुलेट कर लें, 2 क्रॉस 2 का है, सो वी नो द शॉर्टकट, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया डिटर्मिनेंट, एंड ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर, ये -3 एंड 0। सो दिस वी हैव बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। सो मैं अब इसको यहाँ पे 1 -3 0 1 इंटू 1 1 0 माइनस 1, ठीक है, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब मैं उसको इंटू कर लूंगा, सो आई हैव ए इक्वल्स टू 1 0, दिस इज 1 1 प्लस 3 4 0 0 0 and 0 and minus 1. So this is my answer. So A कैसी मैट्रिक्स है, this type of a matrix. So question clear me, if the matrix A is such that this into A equals to this, then what is going to be the matrix? देखिए मैंने इसको इस तरह सिखाया, आप एग्जाम में डायरेक्टली ये समझ जाइए, इधर आ गया तो इन्वर्स हो गया, इसका इन्वर्स निकाल के इससे इंटू कर देना है, ऐसे भी दिमाग में रखिए। मैंने जान के स्टेप वाइज कर दिया कि एक बार जरूर समझ के लिए कि ऐसे ही होता है बेसिकली, इसको उधर ले लेंगे यानी उसका इन्वर्स इसके साथ इंटू होगा तो ये निकल आएगा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। तो मैंने थोड़े प्लान्ड वे में लिख दिया है कि एक बार ऐसे समझ जाइए, बाद में आप इमेज शॉर्टकट फास्ट करने के लिए समझ के लेना है कि इसका इन्वर्स चाहिए अपने को, तो ये ए मिल जाए, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे और इसको इंटू कर देंगे एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो मैंने स्टेप वाइज जान के कर दिया कि वंस एक बार स्टेप वाइज जानिए और उसके बाद आप शॉर्टकट, जैसे एग्जाम में आपको मैंने बोला डायरेक्टली आप उसको उधर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में आते हैं।